Hi, I am VP Kulkarni, TGT Maths from PMC School Janvidhara Shiv. Today, in this video, you will see competency-based question on the topic Some Applications of Trigonometry. It is based on the theme Celebration of International Kite Festival. Of course, it is for class 10th Mathematics. Solution of the question. Here, Kite Festival is celebrated in many countries at different times of the year. So today we are going to talk about Kite Festival. Especially संक्रांति में हम लोग भी Kite Festival करते हैं और गुजरात में ये फेमस है. Kite Festival is very famous in Gujarat, and not only in Gujarat, but it is celebrated in different countries at different times. Now, in India, every year 14th January is celebrated as International Kite Day in India. Okay. On this day, many people visit India and participate in the festival by flying various kinds of kites. So even people from outside the country also, they come to India and they fly the kites. तो ये काइट फेस्टिवल की खासियत है कि इस तरह से काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. The picture given below shows 3 kites flying together. Here you can see the first kite, the second kite, and the third kite. They are flying together. Okay. So we are talking about the kite festival. Now with this background, with this information or with this situation, we have to address a question. So what is that question? Let us see. तो क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे. आपको क्या पूछा है थोड़ा देखो. In the figure, angles of elevation of two kites from points A and B from the hands of a man, point C, are found to be 30 degree and 60 degree respectively. See here, this is the same. Let us say that this is the first kite, and let us say that this is the kite, second kite. Okay, first kite है और ये second kite है, और ये फर्स्ट और सेकंड काइट, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये आदमी क्या कर रहा है, उस पतंग को उड़ा रहा है. This is the position of the person who is flying the kites at this direction as well as at this direction also. Okay. Now this is the information, and now the what is it? Point A, how much degree it is? Point A is 30 degree and point B is how much? 60 degree. Now taking AD is equal to 50. तो AD आपको कितना लेना है? 50 मीटर, and B कितना लेना है आपको? 60 मीटर. We have to find the length of the string used to and take them straight for kites A and B as shown in figure. Of course, ये तो जरूरी कंडीशन है बच्चों कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वरना राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा नहीं. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स बोलते ही मतलब आपको ये वाला लाइन पूछा है, ये एक स्ट्रिंग का लेंथ है और ये एक स्ट्रिंग का लेंथ है. ये दोनों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स आपको पूछा है, यानी आपको अपोजिट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज आपको ढूंढना है. यहाँ पर अपोजिट साइड आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको ढूंढना है. बच्चों अभी तक के जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अक्सर एग्जामिनेशन में, उसके अंदर हमने tan थीटा का ज्यादा उपयोग किया, मगर ये अलग सा प्रॉब्लम है जहां पर आपको tan थीटा से काम नहीं चलेगा. क्या यूज करना पड़ेगा? वेरी नाइस. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए ये प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से अलग है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको देख लो. सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है. द ओनली थिंग इज which trigonometric ratio we have to apply and why we have to use the trigonometric ratio that connects opposite side and hypotenuse. And the trigonometric ratio that connects opposite side and hypotenuse is sine ratio. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये in right angle triangle ADC, अगर मैं यहाँ पर sin 30 अप्लाई करता हूं तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AC. sin 30 की वैल्यू है 1/2 और AD आपको दिया है 50. AC आपको ढूंढना है. तो बच्चों if I cross multiply then I get AC is equal to how much? 100 meters. यानी
the length of the string is how much? 100 meters. For the first time for a change, you have been asked to find out the length of the string. This is the beauty of this problem, or different from the other problem. Now, similarly, इस triangle के अंदर क्या हो सकता है? इस triangle के अंदर same thing I have to apply. So, in right angle triangle, what is it? BEC. इस right angle triangle BEC के अंदर अगर मैंने sin 60 अप्लाई किया तो sin 60 is equal to, this is the opposite side and this is the hypotenuse. So again sin 60 is how much? Length of B upon the length of BC. तो sin 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3/2. The length of B कितना दिया आपको? 60 divided by how much? BC. Again अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज √3BC is equal to 2 into 60 कितना होगा? 120 होगा. तो दिस BC is equal to 120 divided by √3. ओके, अब इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय √3 और डिवाइडेड बाय, तो इसको कीजिए आप, तो दिस इज 120 √3 इंटू √3 कितना होगा? 3. So 3 1s are 3, 3 40s are. So this is equal to 40 √3 meters. The length of BC is equal to how much? 40 √3 meters. तो लास्ट सेंटेंस जो आपका होना चाहिए, the length of the string CA is equal to how much? 100 meters, and the length of the string BC is equal to 40 √3 meters. ये सेंटेंस लिखना भूलो मत, क्योंकि तुमको किसी ने BD और AC की लेंथ नहीं पूछी. तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स. हाँ, अगर ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तब आपको क्या करना पड़ेगा? 100 प्लस 40 √3 आपको करना पड़ेगा. मगर वैसा नहीं पूछा आपको पूछा है कि पहले काइट का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, दूसरे काइट का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है. हमें क्लियर? फाइन, नोट डाउन. पूछा क्या है? द डिस्टेंस D बिटवीन द टू काइट्स. यानी ये डिस्टेंस आपको पूछा है. क्या पूछा आपको? ये वाला डिस्टेंस आपको पूछा है. यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट. आपको क्या पूछा है? ये वाला डिस्टेंस आपको पूछा है. तो देखिए, ये वाला डिस्टेंस आप कैसे करोगे? ये डिस्टेंस अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 100 आया था. तो ये डिस्टेंस है 100 मीटर्स, राइट? ये डिस्टेंस है 100 मीटर्स. ये डिस्टेंस कितना आया था बच्चों आपके पास? 40 √3 मीटर. अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में उसको किया था. और बच्चा और एक बात यहाँ पर देखना कि ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90. और ये तीनों एंगल मिलाकर कितना होना चाहिए? 180. यानी लीनियर पेयर तो होगा. ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना डिग्री होगा? 90. ये लीनियर पेयर होगा. तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BCE, the sum of the three angles should be equal to 180 degree. But out of that, this is 30 and this is 60. So this is how much? 90. सर ये लिखना है क्या? हाँ, आपको लिखना है स्टेप के अंदर. आप उसको लिखिएगा. तो अब ये क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ढूंढना क्या है? AB. तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करोगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस व्हाट? BC स्क्वायर. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और AC कितना दिया आपको? AC कितना दिया है? BC कितना दिया है? 40 √3 का स्क्वायर. अगर बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप तो 100 का स्क्वायर कितना होगा?
100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 और ये 40√3 का कितना होगा 40 इंटू 40 160 देखिए 40√3 इंटू 40√3 कितना होगा 1600 इंटू 3 कितना होगा 4,000 how much is it right children this will be equal to 144800 is it right 4800 मीटर अभी हमको क्या करना है इसको इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप बच्चों तो 14 इससे एक तो बात है कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 148 इंटू 100 तो दिस इज 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 और ये 148 को हम कैसे लिख सकते हैं 74 और ये कितना होगा 37 is it right so this is how much 100 into 4 into how much 37 so this is equal to 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 so 10 into 2 root 37 and this is equal to 20 root 37 मीटर पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ओके तो देखिए अलग सा प्रॉब्लम है जहां पर हमको ये निकालना पड़ा और बाद में जाके हमने क्या किया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया तो प्रॉब्लम टोटली अलग है